حکومت کسی کی بھی ہو، لیکن جو اوورسیز پاکستانیز ہیں نا، اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جو مسائل ہیں، ان کی جو شکایتیں ہیں، ان کو ترجیح میں رکھا جائے. اور یقیناً ہر حکومت کو چاہیے بھی کہ وہ جو جیسے آپ نے کہا نا کہ اتنی بڑی تعداد میں جو زر مبادلہ ہے وہ پوری دنیا میں رہنے والے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ پاکستان میں جب بھیجتے ہیں تو اس کے عوض وہ چاہتے ہیں پھر کہ ان کو کوئی اگر اسپیشل ٹریٹمنٹ نہ بھی ہو لیکن کچھ اچھے انداز سے ٹریٹ کر لیا جائے. اور اس کے علاوہ بھی آج ہم نے اس سیگمنٹ میں بہت ساری پاکستان کے حکومت کے اندر چل کیا رہا ہے وہ بات کرنی ہے. بالکل. اور ہمیں سینئر جرنلسٹ اظہر جاوید نے جوائن کیا ہے، جن کی بڑی اس وقت اسپیشل ملاقات بھی ہوئی ہے پرائم منسٹر آف پاکستان سے. ہم جانیں گے اس ملاقات کا احوال بھی. السلام علیکم، بہت شکریہ. پاکستان میں موجود تھے، آپ کی اہم سیاسی شخصیات سے ملاقاتیں ہوئی. میں چاہوں گی پرائم منسٹر سے جو آپ کی ملاقات ہوئی، یقیناً اوورسیز پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں آپ نے اس سے بھی آگاہ کیا ہوگا. کیا ان کا ویژن ہے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے؟ بہت شکریہ نیلم آپ کا، احمد آپ کا. بس 4-5 دن کے لیے پاکستان جانا ہوا تھا، تو اس وقت ویری کائنڈلی پرائم منسٹر نے ٹائم دیا ملاقات کے لیے. بلکہ ان سے 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، ایک اسلام آباد میں ہوئی، ایک لاہور میں ہوئی. تو اس پہ ظاہری بات ہے جہاں دوسرے مسائل پہ یا دوسرے ایشوز پہ بات ہوتی ہے تو ہمارا سب سے اہم ایجنڈا، ہم جرنلسٹ تو ہیں ہی ہیں لیکن اوورسیز پاکستانی بھی ہیں، اور کوشش یہی ہمیشہ کی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے کوئی بات پہنچانی ہے تو وہ آگے کی جائے. اور پرائم منسٹر سے بڑا فورم ہے نہیں ہے، تو بڑی کھل کے بات ہوئی. اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا کہ وہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ان کے دل میں ان کی بہت قدر ہے، اور وہ خود بھی اوورسیز پاکستانی رہے ہیں، ایک سے زائد مواقع پہ رہے ہیں، چاہے وہ جن حالات میں بھی رہے ہیں، اور وہ کافی عرصہ رہے. اور اس حوالے سے انہیں کہتا ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کو ادراک ہے، مسائل کا بھی ادراک ہے. اور انہوں نے پھر بتایا کہ جو اسلام آباد میں اوورسیز کنونشن ہوا تھا اس میں سے جو انہوں نے وعدے کیے تھے اس میں سے آدھے سے زیادہ پورے ہو چکے ہیں. اور بہت ساری ایک لمبی لسٹ ہے جس کے حوالے سے انہوں نے بات کی. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اوورسیز پاکستانیز کے بغیر پاکستان کا جو سسٹم ہے، چاہے وہ معاشی ہو، معاشرتی ہو، وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. تو باقی توجہ ان کی پی آئی اے کی طرف بھی دلوائی، کیونکہ اسٹل پی آئی اے ایک بڑا ایشو ہے. اور اب دوبارہ وہ آ رہے ہیں 20 تاریخ کو یہاں لنڈن میں ان کا ایک کمیونٹی ایونٹ ہو رہا ہے، اور اس موقع پر بھی کچھ وہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے کچھ جو چیزیں رہ گئی تھیں اس کا وہ اناؤنس کریں گے. لیکن پھر میں کہوں گا پی آئی اے جو سب سے امپورٹنٹ یقیناً ہم میں سے کافی مشکل ہی ہر فرد چاہتا ہے، لیکن چلے اس کے لیے بھی آسانیاں ہوں. اور سب سے پہلے تو ان لوگوں کا بھی احتساب ہو جنہوں نے اس حال میں پی آئی اے کو پہنچا دیا اور اس کی پروازیں جو ہیں وہ یورپ میں بند کروائیں. اظہر جاوید صاحب کچھ اس حوالے سے بتائیے گا کہ یہ جو لوگوں کے ساتھ خاص طور پہ اوورسیز پاکستانی کے ساتھ کنیکشن ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے بھی بتایا کہ ہم گزشتہ سال ایک بہت بڑا پروگرام بھی ہوا، ابھی ہم نے یورپ میں بھی دیکھا اس طرح کا ایک پروگرام ہوا، اب یہاں پہ لنڈن میں ہونے جا رہا ہے. تو عموماً تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ پاکستان جو مسلم لیگ نون ہے نا، اس کا کوئی کنیکشن بہت زیادہ نہیں ہے پاکستان سے باہر رہنے والی جو کمیونٹی ہے ان کے ساتھ. اور اس کا اظہار ہم دیکھتے بھی تھے کہ جب ان کے مخالف کچھ مظاہرے ہوتے تو وہاں بہت بڑی تعداد میں لوگ آتے تھے، جب پی ایم ایل این خود کرنے کی کوشش کرتی تھی. تو کیا یہ اس ری ایکشن میں آ کے اب گورنمنٹ جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ لوگوں کو یہ اعتماد دیا جائے، یقین دلایا جائے کہ وہ ہر اوورسیز پاکستانی کی لیے سوچتی ہے، اور اس سے قطع نظر کہ ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ ہے؟ دیکھیے، میں تقریباً 5 دن رہا ہوں، اس سے پہلے بھی آتے جاتے رہتے. پاکستان میں اس وقت سب سے بڑا مسئلہ سیاسی نہیں معاشی ہے. اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ اس مسئلے کے حل میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. میں نے جن لوگوں سے بھی بات ہوئی، 5-6 شہروں میں جانا ہوا، ہر بندے کا یہ کہنا تھا سیاست اپنی جگہ، لیکن ہمیں کھانے کو روٹی ملنی چاہیے، صحت کی سہولت ہونی چاہیے، بچوں کی تعلیم ہونی چاہیے. تو آپ کو پتہ ہے ایک وقت ایسا آیا تھا جب اس حکومت کے آنے کے بعد، اس حکومت نہیں پی ڈی ایم کے آنے کے بعد معاشی مشکلات آئی تھیں اور بہت زیادہ آئی تھیں. تو اس کا ایک بیک لیش تھا حکومت پر، ابھی بھی اس کے اثرات ہیں. لیکن پچھلے میرے خیال 1 سال میں معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، چیزیں بیک ٹو نارمل ہو رہی ہیں. اب اس کی کیا وجوہات تھیں اس معاشی مشکلات کی وجہ؟ جو حکومت ہے وہ پچھلی حکومت پہ ڈالتی ہے، پچھلی حکومت والے اس حکومت پہ ڈالتے ہیں. لیکن میرے جو لوگوں سے بھی بات ہوئی، تحریک انصاف کا سیاست کا انحصار
मुआशी ख़राब मुआशी सूरत हाल पे। जिस दिन हुकूमत ने अपने ये मुआशी सूरत हाल बेहतर कर ली तो तहरीक इंसाफ की सियासत और नीचे आ जाएगी। तो इसी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी हैं, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जो रेमिटेंसेस भेजते हैं वो हुकूमत के लिए सबसे बड़ा एक जो सोर्स है इनकम का। और बिल्कुल बिल्कुल ये इसमें आप कोई शक सही नहीं कह है। रहे हैं कि हमने देखा कि अप्रैल में भी एक रिकॉर्ड बना था और उससे पहले भी, और बहुत बड़ी तादाद में एक चाहे कितनी भी कैंपेन्स चली हों कि रेमिटेंसेस ना पाकिस्तान को भेजी जाएं, लेकिन मेरे ख्याल से $1 की भी कमी नहीं आई। पाकिस्तान जिसने नीलम मेरा ख्याल है आ भी नहीं सकती, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, क्योंकि लोग तो बुनियादी तौर पे अपने घर वालों को भेज रहे होते हैं ना, जो फैमिलीज़ हैं, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे लोगों का इन्हिसार होता है जो उनकी फैमिली मेम्बर बाहर हैं। तो चाहे कोई भी कंपेन करे, कोई कुछ भी कहे, लेकिन ये तो एक बुनियादी ज़रूरत है जो हमने पूरी करनी बिल्कुल। है। अच्छा अज़र जावेद साहब, आपने पीटीआई की भी बात की, आपकी नाहम शख्सियात से मुलाकात हुई है, किस तरह से डील किया जा रहा है? ठीक है, एक सियासी हकीकत है पीटीआई, एक मसला भी है, उनके लीडर भी अंदर हैं, फिर अलीमा खान के साथ भी ऐसे कुछ अजीब व गरीब वाक़यात पेश आते। कुछ हुकूमत सोच भी रही है कि किस तरह से पीटीआई की जो रिजेंटमेंट है या हेट है उसको भी किसी तरह से कम करके कौमी धारे में शामिल किया जाए? देखिए जी, इस पे बिल्कुल हुकूमत सिर्फ सोच नहीं रही, इस पे बहुत सारी चीज़ों पे काम भी कर रही है। मेरी एक और अहम मुलाकात नवाज शरीफ साहब से भी हुई, वो मरी में ऊपर छंगला गली में उनसे, और इस इश्यूज़ पे उनसे भी बात हुई। और जो मुस्लिम लीग नून का इस वक्त सबसे बड़ा मसला है कि उनकी जो क़यादत है वो उस तरह एक्टिव नहीं है जिस तरह ऑन ग्राउंड होना चाहिए था। हुकूमती सतह पर तो है, आप शहबाज शरीफ साहब को देखते हैं, शहबाज शरीफ साहब सुबह शाम लगे हुए हैं, काम हो रहा है। मरीम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो भी हुकूमती काम कर रही हैं, और बाज़ लोगों के नज़दीक बहुत अच्छा कर रही हैं, बाज़ लोगों के नज़दीक ठीक नहीं कर रही, लेकिन सलाब में भी उनकी कारकर्दगी काफ़ी रही। लेकिन सियासी सतह पे उनका कोई लीडर इस वक्त एक्टिव नहीं है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला तो हैं, लेकिन नवाज शरीफ जैसे लीडर जो पार्टी के सदर भी हैं, आप उनको बहुत कम देखते हैं स्क्रीन पर। आप राना सनाउल्लाह साहब को पहले देखते थे पॉलिटिकली, लेकिन अब वो भी हुकूमती शख्सियत हो गए हैं। अब हुकूमती शख्सियत जब होती है तो उसका वो सियासी असर उतना नहीं होता, क्योंकि पार्टी के लोगों को काम जो है वो एक सियासी ज़रिए से होता है। तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून में ये बड़ी सोच पाई जाती है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके, जैसे नवाज शरीफ साहब हैं, और उसके बाद ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को आपने देखा, वो एक्टिव हुए थे पिछले दिनों। इसी तरह दूसरी जो हमजा शहबाज साहब हैं वो भी पीछे हैं। तो ये एक खला है, और खला जो मेरी इतलात है वो जानबूझ के अभी रखा गया है, क्योंकि ये समझते हैं कि क्योंकि अभी तो हुकूमत को आए 1.5 साल हुआ है, और ये सोच रहे हैं कि 5 साल पूरे हो जाएंगे, तो जब तीसरे साल के बाद ये अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को तेज़ करेंगे। तो उस सारे असर की एक, क्योंकि आपको सिर्फ इस वक्त पीटीआई ही अपोजिशन में नज़र आ रही है, तो अपोजिशन सारी बात है, जब अपोजिशन में हो और उनके लोग जेल में भी हों तो एक क्या हमदर्दी की लहर भी होती है उनके लिए। और बाकी वैसे ऑन ग्राउंड मैंने पीटीआई का स्वाय वो अडयाला में एक वीकली शो चलता है जो मेरा ट्यूसडे को शायद होता है, उसके अलावा आप कहीं भी उठा के देख लें, कोई ख़बर उठा के देख लें, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में, इवन पेशावर में कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी उनकी भी नहीं हो रही। तो एक ट्यूसडे या जब उनकी तारीख होती है इमरान खान साहब की, उस दिन पॉलिटिकल एक्टिविटी होती, तो इस लिहाज से अभी तो वैसे भी पंजाब की एक बड़ी तादाद जो है वो सैलाब की नज़र है, तो उसके हवाले से उसकी रिलीफ एफर्ट चल रहा है। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने जब तक अपने इन लीडर्स को मुतहर्रिक नहीं करेगी, नवाज शरीफ साहब ख़ास तौर पर, तो उस वक्त तक हमें यही सूरत हाल है। अज़र जावेद साहब, नवाज शरीफ साहब के मुतहर्रिक ना होने की वजह क्या है? ठीक है, वो इलेक्शन हार गए, वो साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, लेकिन ये जो पार्टी है वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है और एक तवील अरसे से पार्टी है, उसको एक्टिवली लीड करना ये भी एक एजाज़ भी है, और उनके कारकुनान की यकीनन इस हवाले से एक आस और उम्मीद भी है कि नवाज शरीफ साहब जो अब मुल्क में मौजूद भी हैं तो वो पोलिटिकली मुतहर्रिक हों। वो हमने दरमियान में देखा था कि वो मरीम नवाज़ साहिबा के साथ कुछ इलाकों का उन्होंने दौरा किया, वहाँ पे कुछ रैंडम मुलाकातें भी की,
लेकिन वही बात कि जिस तरह से पॉलिटिकली ठीक है, ज़रूरी नहीं कि कोई तहरीक चलाई जाए, जो इलेक्शन से पहले माहौल होता है वो यकीनन अभी तो नहीं बनाया जा सकता, लेकिन पार्टी के सरबराह के तौर पे जितनी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए आपके ख्याल में क्यों वो अभी तक नहीं कर पा रहे? उसकी एक वजह क्योंकि उनकी पंजाब में भी गवर्नमेंट है, फेडरल में भी गवर्नमेंट है, मुआशी हालात वो नहीं है। अब वो बाहर जाएं तो किस पे बात करें? क्या वो फेडरल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बात करें या पंजाब गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बात करें? ज़ाहिर बात है जब मिलेंगे लोगों से तो बात तो करनी पड़ेगी। तो इस वजह से टेक्निकली जानबूझ के वो इस वक्त लो प्रोफाइल में है कि ताकि किसी किस्म की महसूस ना हो कि जी फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से कोई बात हो गई या पंजाब के हवाले से। तो इस वक्त जैसे मैंने अभी बताया कि इस हुकूमत को आए 1.5 साल हुए हैं, तो 3 साल तक जब हो जाएंगे कुछ प्रोजेक्ट्स की जो शक्ल नज़र आनी शुरू हो जाएगी, कुछ लोगों को रिलीफ मिलता नज़र आएगा, को मुआशी सूरत हाल बेहतर होगी, तो नवाज शरीफ साहब के पास कहने को कुछ बातें होंगी, कुछ सामना करने की किसी जब बात हो रही होगी या जर्नलिस्टों से मिलेंगे तो वो बात का जवाब भी दे सकेंगे। तो अभी तक तो मेरा ख्याल है जब अब मेरा 1.5 साल में सिवाय मेरे और एक मुर्तज़ा अली शाह साहब की उनकी मुलाकात वो बहुत कम लोगों से यही तो उन्होंने की। अजीब बात लगती है ना कि उनका जो मीडिया के प्रेजेंस है वो उतनी ही है जितनी पीटीआई के दौर में थी, जब पीटीआई ने उनके नाम पे भी पाबंदी लगाई हुई थी कि इनकी कोई खबर भी ना चलाए, तो उतना ही उनकी जो इस वक्त प्रेजेंस है वो जारी है। इसलिए अब अपनी हुकूमत में अगर उन्होंने इंटरव्यूज नहीं देने, बात नहीं करनी, चले सियासत ना करें और मुल्की सलामती के मामलात या इस तरह के बड़े जो नेशनल डेज होते हैं उस पर भी वो या सुहेल वड़ाइच साहब के साथ एक दिन गुजार लें, कुछ लोगों को पता तो चले कर क्या रहे हैं। बिल्कुल। तो मैं आपसे मरियम नवाज साहिबा के हवाले से आपसे सवाल करना चाहूँगी। आप यकीनन पंजाब में भी आपने उनकी एक्टिविटीज़ भी देखी हैं। कुछ लोग उनको कहते हैं कि उन्होंने बड़ा अच्छा किरदार निभाया, अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर हैं। उनका कंपैरिजन उनके चचा से ही करते हैं, शहबाज शरीफ साहब से। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो सिर्फ टिकटॉक की हैं और बस विजुअल्स बनाती हैं और उसके बाद चली जाती हैं, और उसके बाद उनकी टीम ही उनको बेवकूफ़ बना रही होती है, वो जो इमदाद दी होती है वो वापस ली जा रही होती है। आपने भी उनको यकीनन मॉनिटर किया, ऑब्जर्व किया होगा, आपको क्या लगता है वो कैसी एडमिनिस्ट्रेटर है? देखिए जी, एक बात तो खुशाइंद कह सकते हैं कि पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म, और जो मेरा ख्याल है एडमिनिस्ट्रेटिवली जो खातून किरदार अदा कर सकती है वो मर्द शायद कम कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उन्होंने सीखा है अपने वालिद से, वो कोई नई नहीं है। पिछले कोई 30 साल से वो देख रही हैं अपने वालिद को। फिर जब आपने देखा कि सियासत में जब सारे घर के मर्द जेलों में थे तो वो बाहर निकली और उन्होंने बड़ी एक मुज़ाहमत की सियासत की। उस वक़्त काफ़ी उनका एक पॉलिटिकली इमेज स्ट्रांग हुआ। तो अब जब उनको मौका मिला है तो मेरी जो बात हुई ब्यूरोक्रेसी में भी ख़ास तौर पे, जो पॉलिटिशियन से भी, पॉलिटिशियन नाराज़ है उनसे, इवन उनकी अपनी पार्टी के लोग, और जो ब्यूरोक्रेसी है वो इस लिहाज से उन कहती है कि जी हमें चैन नहीं लेने देते, कि हमें रिस्पांस फौरी चाहिए। बल्कि एक तो मुझे साहब ने वो एक व्हाट्सएप ग्रुप भी दिखाया जो उनका पूरा सेक्रेटरीज़ का बना हुआ है, DCOs का बना हुआ है, कि जिसमें मरियम नवाज भी ऐड है। कोई भी चीज़ होती है उस ग्रुप में जाती है जब व्हाट्सएप, तो फिर उसका फ़ौरन वो जवाब मांगती हैं और विद इन आवर्स वो मसला हल होना होता है, नहीं तो मुतलका जो शख्स है उसके लिए प्रॉब्लम होती है। और इस वक्त सबसे बड़ा पॉलिटिशियंस का इतराज़ है पंजाब में कि हमारी मर्ज़ी के तबादले नहीं हो रहे, तकर्रर नहीं हो रहा। बहुत सारे MPs इवन मुस्लिम लीग नून के नाराज़ हैं कि जी हमारी मर्ज़ी का हमारा DC नहीं आ रहा, हमारा SP नहीं आ रहा, हमारा रेवेन्यू का बंदा नहीं आ रहा। तो मेरा ख्याल है जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा कर रही हैं, मुज़ाहमत तो उनको है, लेकिन अगर वो 1-2 साल निकाल गई तो ब्यूरोक्रेसी का निज़ाम भी बहुत बेहतर होगा। हमारी जो सबसे बड़ा मसला ही आपको पता है, जब मेरिट से हट के तकरीरें होती हैं तो उसकी वजह से जो ख़राबी आती है तो उसकी वजह से होते हैं। तो मेरा ख्याल है मरियम नवाज शरीफ साहिबा को टाइम देना चाहिए। अच्छा, एक और सवाल है, मैं अहमद आपकी इजाज़त से इसी से रिलेटेड है, मैं करना चाहूँगी। अगर उनकी पहचान नवाज शरीफ साहब की साहिबजादी से हटा दी जाए और सिर्फ मरियम नवाज के तौर पे एक सियासतदान के तौर पर उनको सामने लाया जाए, ठीक है बहुत सारे लोग डिबेट करेंगे, फिर तो वो शायद इस जगह ही ना होती, तो आपको नहीं लगता कि बहुत सारे लोग जो उन पर बड़ी ब्रूटल तनकीद करते हैं वो समझेंगे कि नहीं थोड़ा डिफरेंट काम हो रहा है, थोड़ा चलें, वो भी अभी सीख ही रही हैं या जो भी, लेकिन कदरे बेहतर काम हो रहा है। आपको नहीं लगता कि नवाज शरीफ की बेटी होने की वजह से वो हर वक्त ज़्यादा स्क्रूटनी में रहती हैं, हर वक्त ज़्यादा रडार पे रहती हैं, कोई अच्छा काम भी करें तो लोग बुरा ही समझते हैं? बिल्कुल जी, वो एक फैक्ट है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो एक
मुखालफत है वो तो है, वो ओवर द इयर्स है। पहले 30 साल पहले तक पीपल्स पार्टी करती थी, अब वो पीटीआई वाले कर रहे हैं। तो लेकिन जो मरीम नवाज शरीफ साहबा हैं, वो मेरी बल्कि नवाज शरीफ साहब से बात हुई, वो कहते मैं उनको डिक्टेट नहीं करता, और उन्होंने कहा जी वो बहुत सारे काम खुद कर रही हैं, और ये उन्होंने बड़ा ओपनली कहा। उन्होंने कहा कि वो इनिशिएटिव लेती हैं, वो काम करना चाहती हैं और वो अपना काम कर रही हैं। जहाँ पे ज़रा उनको प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ डिस्कस करनी होती है तो मेरे से कर लेती हैं। तो उन्होंने कहा कि मतलब उनसे लग यही रहा था, वो चाह रहे हैं कि वो सोलो फ्लाइट लें, अपने डिसीजंस खुद करें, और इस जो अपनी सियासत के साथ, सियासत में तो उन्होंने अपने आप को देखें जो प्रूव करना था मेरा ख्याल है कर लिया। जितनी उन्होंने मुश्किलात से निकाला मुस्लिम लीग नून को, सब लोग पहले कुलसूम नवाज साहबा ने निकाला था, याद होगा आपको जब मुशर्रफ दौर था, तो अब एक बहुत बड़ा हिस्सा उनकी मुज़ाहमत की सियासत का भी था, जब वो घंटों एक रैली लीड करती थी, पंजाब में टफ टाइम दे रही थी। तो मेरा ख्याल है कि मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो इकदामात किए हैं, बल्कि मैं एक आपको छोटी सी मिसाल दूं, फरवरी में जब मैं गया था, जनवरी फरवरी, तो एक कैंसर हॉस्पिटल लाहौर में बनाने की बात हुई, आपको याद होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी तेजी से उस पर काम जारी है। तो मैं उस वक्त उस एरिया में गया, मैंने देखा उसकी बुनियादें शुरू हो रही थी। तो इस दफ़ा गया हूँ तो उसकी इमारत खड़ी हो चुकी है। तो मेरा 6-7 महीने में अगर आप एक प्रोजेक्ट को देखें तो वो प्रोजेक्ट खड़ा हो रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं और हो रहे हैं। और इसके अलावा पहले इल्ज़ाम ये होता था कि शायद सिर्फ लाहौर में ही काम होता है, लेकिन इस दफ़ा कसूर में भी गया हूँ। कसूर में भी आप लाहौर से 30 मिनट में आप कसूर चले जाते हैं, पहले आपको 1.5-2 घंटे लगते थे। अब नई मोटरवे निकल रही है, लाहौर से साहिवाल जा रही है। आप एक नई मोटरवे अब खारियाँ से इस्लामाबाद जा रही है। अब लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे का जो फैसला 1 घंटा और कम हो रहा है। उसके अलावा लाहौर सियालकोट मोटरवे बन गई, लाहौर नारोवाल बन रही है। तो मतलब ये पूरा फैसलाबाद चले जाएं, फैसलाबाद में भी यही सूरत हाल है, मुल्तान तक यही सूरत हाल है। तो मेरा ख्याल है कि अब एक पंजाब में जो एक ब्रेक आई थी बुज़दार साहब की शक्ल में कोई 2-3 साल की, पंजाब में जो वज़ीर आला रहे हैं वो निस्बतन बहुत बेहतर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब थे, शहबाज शरीफ साहब थे, इवन परवेज़ इलाही साहब, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। तो अब मरीम नवाज शरीफ साहिबा भी बिल्कुल रेस में है, लेकिन फिर मैं वही कहूँगा टू अर्ली टू जज। आप 3 साल 3.5 साल के बाद उनकी कारकर्दगी को जांचें। लेकिन अजहर जावेद साहब, इस वक्त जो पंजाब को सबसे बड़ा मसला दरपेश है, वो बल्कि पूरे पाकिस्तान को और पंजाब को भी सैलाब की सूरत में, उसमें आपने किस तरह से देखा? क्योंकि ठीक है, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं वो तो सब अच्छा की रिपोर्ट ही देंगे, और जो उनके ज़रिए से मालूमात आ रही होती हैं, ये तस्वीर भी आ रही होती हैं, वो यकीनी तौर पे अपनी कारकर्दगी जो है उसको बयान करेंगे बढ़ा चढ़ा के। जो मुखालफिन है वो कुछ हो भी रहा हो तो वो कहेंगे कि बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा, और जब कुछ और नहीं मिलेगा तो वो इस बात पे एतराज़ हो जाएगा कि तस्वीर मरीम साहिबा की लगा के क्यों डब्बे जो है तकसीम किए जा रहे हैं, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो जो काम सैलाब में, और जितने बड़े पैमाने का कि 42 लाख से ज़्यादा अफराद जो हैं वो मुतासिर हुए हैं इस सैलाब से। 80 लाख, बल्कि आज मैं स्टेटमेंट अभी देख रहा था पीडीएम में कि उन्होंने कहा 80 लाख से लोग तकरीबन। ये तो एक बहुत एक ऐसी है जो शायद इससे कबल हमने इतने बड़े पैमाने पे तबाही भी नहीं देखी। तो इस सूरत हाल में किस तरह से पंजाब हुकूमत काम कर रही है, और इस जो सैलाब की सूरत हाल के मद्देनज़र रखते हुए आप जो पंजाब हुकूमत है उसकी कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? देखिए जी, मैं उनका तर्जुमान तो है नहीं हूँ कि मैं ये बताऊँ कि वो अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस में आया कि काम हुआ है, और लेकिन गो के लेट शुरू हुआ है। क्योंकि एक अगर सैलाब पानी चल रहा है, पीछे से आ रहा है, तो आपको पता लग जाता है 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। लेकिन एक उसका नेगेटिव ये भी था कि इंडिया की तरफ से वो मालूमात भी शेयर नहीं की जा रही इस दफ़ा जो होनी चाहिए। लेकिन जब एक दफ़ा चीज़ें मुतासर होना शुरू हुई तो फिर पंजाब की हुकूमत और इंतज़ामिया ने अपनी तरफ से काफ़ी बेहतर काम किया है, कोशिश कर रहे हैं, वो लगे हुए हैं। लेकिन सैलाब में पानी में जो रिलीफ वर्क का एक बहुत मुश्किल काम होता है, जहाँ पानी ही पानी है वहाँ तक पहुँचना। और जो मेरी मालूमात है, बल्कि मैंने देखा भी कि वहाँ पर रिलीफ कैंप्स लगाए गए हैं, लोगों को वहाँ रखा जा रहा है, लोगों को खाना भी दिया जा रहा है, बेसिक नेसेसिटीज़ दी जा रही हैं। लेकिन ये रिलीफ वर्क जो है अभी शुरू हुआ है, अभी तो उनकी आबादकारी दोबारा होनी है। वो सबसे बड़ा इम्तिहान है कि लोग वापस जब अपने घरों में जाएंगे तो उनको उनकी आबादकारी के लिए उनकी जो फसलें तबाह हुई हैं, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, वो सारी चीज़ों को आप कैसे मैनेज करते हैं। तो मेरा ख्याल है
पंजाब हुकूमत इस काम को अगर कर गुजरती है, रिलीफ वर्क तो उन्होंने किया है, लेकिन अगर ये आबादकारी का काम अच्छे तरीके से कर लेते हैं, लोगों को मुतमईन कर लेते हैं, तो फिर मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत पॉजिटिव भी हो जाएगा कि जो उनके वज़ीर आला ने अच्छा काम किया है। और बाकी जो तनकीद है ना टिक टॉकर वज़ीर क्या है, ये सारा तो मेरा ख्याल है ये रवायत भी तो इमरान खान साहब ने डाली है कि वो सुबह दोपहर शाम सारी चीज़ें डाल दो। और अब एक नई टेक्नोलॉजी है, अब टीवी खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं हमें, अब हर और हम तो बल्कि खुश होंगे कि अगर हमें गंडापुर साहब या जो सिंध के वज़ीर आला हैं वो भी नजर आए, करते हुए नजर आए। बिल्कुल, लेकिन वो अच्छा है। देखें, आप अपने काम की तशहीर नहीं करेंगे तो उसमें कैसे लोगों को बताएंगे? अगर कोई काम हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है लोगों को, तशहीर होनी चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि काम तो होना। तो यही आपकी बात कि काम अगर नहीं हो रहा तो गंडापुर साहब किस चीज़ की तस्वीर डालें टिकटॉक पे? तो सबको मुकाबला करना चाहिए। टिकटॉक बेशक बना लें, लेकिन काम जरूर करें। अच्छा, पिछले दिनों साद रफ़ीक साहब की एक वीडियो आई थी और उन्होंने इतनी खूबसूरत बात की कि वो पहले वहाँ पे पहुँचे और उसके बाद उन्होंने इमदाद का ऐलान किया, और जब इमदाद तकसीम करने की बारी आई तो उन्होंने कहा अब कैमरास बंद कर दें, और क्योंकि हम नहीं चाहते कि लोगों के जो हैं वो ऑब्वियसली सफ़ेद पोश तबका एक बहुत बड़ी तादाद में मुतासिर होता है, और फिर आप जब उनको अगर एक एक आटे का थैला लेते हुए दिखाएंगे तो ये बुरा है। इसमें मीडिया को भी अपनी जिम्मेदारी, अपना एक कोई रूल बना लेना चाहिए कि आपको भी, मीडिया के नुमाइंदों को भी पता हो कि कब हमने कैमरास बंद कर देने हैं। ठीक है, एक चीज़, एक अगर इवेंट होता है उसको दिखाया, उसमें जो ऐलानात हुए उसको दिखाया, और एक हर किसी की सेल्फ तस्वीर रिस्पेक्ट जो है वो रखनी जूम चाहिए, करके जो है वो ना दिखाई जाए। इस हवाले से भी जो है वो काम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और बड़ा डिटेल में बात हुई। और सबसे एक्साइटिंग न्यूज़ तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए है कि इसी महीने एक और कन्वेंशन, बिल्कुल एक वो है कि एक ताल्लुक बना रहना चाहिए। इस तरह के जो इवेंट्स हैं वो होते रहने चाहिए और फिर इंशाल्लाह मसाइल का हल भी निकल आता। बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया।